with your talk. Thank you, Ankita, for so kind words. So, good evening, everybody, one and all present on this platform. So, on behalf of KFOGS and MTP committee, along with Innerville Club of 309 district, I welcome you all. And this is a joint venture of Kotkapura and Faridkot OB-GYN Society and MTP committee and Innerville. So, three organizations are here together on this platform for creating the awareness amongst women. So, we have organized this webinar with the idea to make all women aware of the minor problems, जिसको हम minor सोचते हैं, sometimes वो अगर हम timely act ना करें, they become a very major complication. So for this we have created a platform जिसपे हम awareness of abortions and contraception, दोनों चीजें हमारी life में बहुत important part play करती हैं. तो अगर हम उस चीज के बारे में नॉलेज डिसिपेट कर सकते, डिसेमिनेट कर सकते, तो इट इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल टू द पीपल. एंड अलोंग विद दैट वी आर गेटिंग रिकॉर्डिंग ऑफ दिस लेटर ऑन. अगर हम अपने क्लब में इसको सर्कुलेट करना चाहेंगे तो आई थिंक इट विल बी पॉसिबल आल्सो. So if we are knowledgeable, only then we can reduce the suffering of womenhood. And this program is to make aware of the people, because abortion के laws change होते रहते हैं. Sometimes ladies are so hesitant, वो बात नहीं करती घर में जब वो pregnant हो जाती हैं कि हमने discuss करना है. So nowadays the laws are very good और हम कहीं पे भी जाके उस चीज को हम करवा सकते हैं. One should not feel shy, rather one should open up with the people कि हमें ये problem है तो हमें इसको solve करना है. So with these words, I would like to first of all welcome our district chairman, Mrs. Surinder Monga ji, who is our district chairman. She is from Bathinda. And just few lines about her, because when I was going through her biodata, it was really very good to read every line of it. In her college days, she was NCC cadet and was given the best shooter and best cadet award. Ma'am, thank good, congrats. So शुरुआत में ही आपने बचपन में ही कर ली थी डीसी बनने की तो. So she joined Innerville in 1995 and had many positions in Innerville. Ankita, you need to mute someone else, है ना? किसी का on है. So Innerville career you started in 1995 and reached to the top position. She served in the office of BSNL as office superintendent in 1983 to 2020. And she's a lady with great mission ahead. So over to you, Rajni ji. So Rajni is past national editor. So Rajni ji, mic is over to you. Hello. Rajni Katia is our past national. Yes, I am here. I am here, Nishi. Oh. Thank you so much. She is formally going to welcome all. सबसे पहले तो a very good and cheerful evening to all of you. Please slides अभी नहीं चाहिए. Yeah, it gives me an immense pleasure that today KFOGS, MTP committee and Innerville have started working together. And if we keep going like that, surely we will go a long way and organize such more webinars together in the near future. Am I right, Dr. Nishi? Bilkul right, absolutely right. Would love to be part of these webinars. Yeah, वो कहते हैं ना कि coming together is a beginning, keeping together is a progress, and working together is a success. And already today, from today, we have started working together with KFOGS and MTP committee. So I am Rajni Katia, past national editor and past district chairman of District 309 and your host for today's webinar. First of all, I would like to extend my heartiest warm welcome to our Honorable District Chairman Surinder Monga ji, IW dignitaries, esteemed guests of the day, and all Innerville members. I extend my sincere gratitude to all our respected doctors who have joined us for today's webinar, for accepting our invitation and join us. Thank you so much, each one of you, for carving out your precious time to be a part of this webinar. I'm extremely grateful to District Chairman Surinder Monga ji
and President IWC Innerville Club Freethcourt, President Dr. Nishi Garg, for giving me this opportunity to host this webinar. I truly honor your trust, and you both have placed in me, and I would do my best to meet your expectations. Thank you so much once again. So I would like to congratulate Dr. Nishi for taking such a great initiative. Thank you. Nishi, your efforts, your enthusiasm, I'm so happy to see that. And it is only with your efforts that you made it possible to happen. Only because you were at my back. It is all my pleasure. So I think meeting is called by the Surinder Monk. Yeah. We are the caller. Okay. Firstly, we are the caller. Okay, right. Now, meeting call to order. Thank you, Surinderji. As the meeting is called formally by our district chairman, so let's start this webinar with formal welcome of our esteemed guest speakers. On the behalf of District 309, I take pleasure to extend my warm welcome to our district chairman, Surinder Mongaji. Can I have a slide, please? Heartiest welcome to Surinder Mongaji. We are so delighted having you with us today. Thank you so much. Now we cordially welcome to our honorable doctors who kindly join us, giving their precious time to share their knowledge with us. A hearty welcome to Dr. Kiran Chandana ji. Thank you so much, Dr. Kiran ji, for honoring us with your gracious presence. You're muted, ma'am. My pleasure. Thank you for inviting me. Thank you. It's all our pleasure, ma'am. Heartiest welcome to Dr. Richa Sharma. She couldn't come because of some problem. Okay. Okay, So we right. have two more, Dr. Deepa. And okay, and so I extend my heartiest welcome to Dr. Deepa Gupta and Dr. Anuradha Panda. Thank you so much, ma'am, for joining us. A warm, hearty welcome to Dr. Sandesh Ganju, moderator of this panel discussion. Having you, ma'am, at IW platform is a true delight for all of us. Heartiest welcome to Dr. Nishi, moderator and initiator of this webinar. Great job. Well done. Thank And you. President of IWC Freethcourt Club, President of KFOGS, and member of MTP committee. Thank you. Thank you. I extend my heartiest welcome to Dr. Deepa Gupta and Dr. Anuradha Panda. Actually, I came to know about their joining an hour before, so I couldn't make their slides, and I apologize for that. So this is me. this is Rajni Katia. She's past national editor. There was a very long biodata for her, but we couldn't compile it into this PPT. So ये अपने आप में खुद एक शख्सियत है जो कि हमें लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है? Thank you so much. Thank you. So now I would like to welcome all our district executive committee members. District Vice Chairman, Dr. Suman Gupta, Association Council Member, Bela Sachdeva, Secretary Neena Kohli, Treasurer Shelly Mittal, ESO PDC Madhu Mehta ji, ISO Devmani, Editor Shelja Taneja, and CCCC PDC Ajinder Chima ji, and shining star of our district, our respected PDCs, नीता पुरी जी, जिनको मैं देख पा रही हूँ, और किस-किसने ज्वाइन किया है, dynamic presidents, and all the Innerville friends. I welcome you all. Thank you so much for your valuable presence at this webinar.
Now I request to play the audio visual of IW prayer. Inner wheel prayer. मित्र भाव के सत्य अर्थ को हम सब में हे ईश्वर भर दो। हम सब ही हैं तेरे बालक, भूले ना ये इतना कर दो। धर्म और संस्कृति भेदों का मन में नहीं स्थान रहे। सभी मानवों की सेवा का हमें सदा ही ध्यान रहे। आवश्यकता हमें मदद की हो सकती है, हद रहे। सेवा करने की ज़रूरतें जहाँ कहीं भी आन पड़े। सेवा करने को सब जन की तत्पर हम सब डटे रहें। इनर व्हील की शान बढ़ाएं, यह वर हमें प्रदान करो। मानव जीवन व्यर्थ न जाए, प्रभु ये कृपा प्रदान करो। Thank you. Ankita, next slide. It's over. Next. Friends, Next. Next चला दो, फिर वीडियो चलाएंगे। no, पहले it's चला not- दें। no, it's not a slide. Actually, I have to speak few lines before that. Okay. So it is rightly said that women's health need to be at the front and center. Often it is not, but it needs to be. So keep in mind these lines. Today we have gathered here to discuss the topics which are completely relevant to women's health. And these topics are abortion and contraception. To make ourselves aware and to learn more about these topics, today we have a panel of renowned expert doctors among us who will share their knowledge, experience, and valuable inputs with us. So without any further delay, let us move forward to the next agenda, a talk with experts. And I request Dr. Nishi to proceed further. Over to you, Nishi. Thank you. So first of all, I would like to introduce myself. It is already introduction is given. So myself and Dr. Sandesh, we are the moderators for the session of Talk with Expert. And in our experts, what I can see is we have Dr. Deepa Gupta. She's from Delhi and she is also one of the member of MTP committee. And Dr. Kiran Channa, she is from Faridabad and she is also a member of MTP committee. She is also very active, presenting conferences, arranging conferences, and always discussing many things on this MTP only, because we being members of MTP, we are wholeheartedly working on this. So welcome to you, both of you. Ankita, slide play karna. Next, video baat karna. Dr. Sandesh. So my introduction is given by Ankita. So I would like to introduce Sandesh in few lines. Dr. Sandesh is working as Associate Professor in OB-GYN Department of GGS Medical College. Nahin, abhi Sandesh ki rani. And she is also a member of FOXY, presented many papers and publications, and she has special interest in gynae, onco, and high-risk pregnancies. Next. So this is the slide of Dr. Richa Sharma, who couldn't join us. She is our chairperson MTP committee, and she has got many laurels in her CV. So she has got many publications, and she being the chairperson, she is very actively working on this platform. Next. So Sandesh, she is Dr. Kiran Channa. She is from Faridabad OB-GYN Society, and she's president of that society and active member of FOXY, and her work experience is more than 35 years. Sandesh, I think you introduce please Dr. Deepa. Next. Ankita, इसके बाद वीडियो प्ले कर देना. Dr. Deepa.
You're muted. Dr. Deepa is a member of the MTP Committee East District and a member of the MTP Committee FOGC. So it's a pleasure having her with us. And it's an absolute pleasure, ma'am, for me, on behalf of me and my college, having me on this platform. I thank the Inner Wheel for this. And I think it is a very, very beautiful and amazing initiative that has been taken to create awareness regarding MTP and abortions. Video play karna. So we have created a scenario which we see in our day-to-day practice. So this is a scenario in which a patient is visiting a gynae OPD. हाँ जी की तकलीफ है मैम हेडेक बहुत ज़्यादा हो रही है मैम हेडेक के नाल मैम फीवर भी बहुत ज़्यादा पेट दर्द भी बहुत ज़्यादा हो रहा है मैम अच्छा कितने दिनों तो हो रहा है मैम 3-4 दिन हो गए मैम अच्छा बहुत ज़्यादा हो रही है अच्छा की प्रॉब्लम शुरू हुई सी मैम मैंने प्रेगनेंट हुई सी अच्छा कितना टाइम सी मैम वीक हफ्ता हो गया सी अच्छा ਤੇ और मैम मैं बिना किसी सलाह ले मैं केमिस्ट शॉप तो जाके मैं किट लेके खा लूंगी अच्छा कितनी गोलियां सी किट च मैम उस ਵਿੱਚ 5 गोलियां सी अच्छा सारी किट खा ली सी हाँ जी मैम सारी खा ली फिर ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਲੀਡਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ मैम कोई ब्लीडिंग नहीं हुई मैम अच्छा फिर ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ डॉक्टर ਨੂੰ कंसल्ट ਕੀਤਾ कि नहीं ਕੀਤਾ मैम कोई डॉक्टर ने नहीं किया मैम मैं कोई साढ़े गांव के पास से एक नर्स थी मैम नर्स के पास गई उन्होंने मेरे को बताया कि अबॉर्शन होगा उन्होंने मैम मेरा अबॉर्शन कर दिया मैंने यस कर दिया अच्छा वहीं पे ये अबॉर्शन करा लिया आपने हाँ जी मैम अच्छा फिर अबॉर्शन के वक्त उन्होंने आपको बेहोश किया था टीका टूका लगाया था कि नहीं लगाया मैम कुछ नहीं अच्छा फिर उसके बाद मैम मेरे को बुखार आने लगा हेडेक होने लगी पेट दर्द भी होने लगा ये आपका काम गलत हो गया। देखो जो पहले तो किट जो लेनी होती है वो डॉक्टर की सलाह के बिना नहीं लेनी होती है ना। और जो अबॉर्शन होगी आपकी उसमें ये हो सकता है कि हमें अल्ट्रासाउंड करना पड़ेगा देखने के लिए कि कोई पेट में बच्चेदानी तो नहीं फट गई या कोई ट्यूब में प्रेगनेंसी तो नहीं है ना। हाँ जी तो ठीक है चलो फिर देखते हैं आपका, करते हैं इलाज। दिखा मेरे को कितना कहते हैं, तो पल्स भी तेज है, हो सकता है कि आपका यूट्रस ही रप्चर कर दिया हो है। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। और उससे पहले आपने खून वगैरह भी नहीं टेस्ट करवाया? कुछ नहीं मैम करवाया, वैसे ही चली गई। So this is a scenario in which a patient has come after taking tablets from chemist. Chemist से दवा लेते patient pregnant हुई, chemist से दवा ली, दवा खा ली, दवा खाकर नहीं हुआ कुछ, then she went to a nurse. And this thing happens daily. मतलब हमारे पास हर रोज इस प्रॉब्लम्स के साथ पेशेंट आते हैं। ठीक है, नर्स के पास गई, वहां उसने ये नहीं देखा कि नर्स की डिग्री क्या है, नर्स को कितना काम आता है, उससे जाके उसने अबॉर्शन करवा ली। अब उस अबॉर्शन में उसको पेट में इन्फेक्शन हुई, और कई बार क्या होता है कि ट्यूब में प्रेगनेंसी पड़ी होती है और पेशेंट का बाद में सर्जरी में एंड अप हो जाता है। तो इन्हीं सिनेरियो को डिस्कस करने के लिए वी हैव आवर एक्सपर्ट्स विद अस, डॉक्टर किरण एंड डॉक्टर दीपा। So now we are going to discuss the things in the form of question and answer with Kiran ji. So I will be sharing my screen. Ankita, let me share my screen. Yes, ma'am, you can share, ma'am. Dr. Rishi ma'am already said कि we'll keep it simple in Hindi so that it goes to the masses. So हमें पता है आजकल का जो जमाना है, आजकल के टाइम पे जब इंडिया का झंडा चांद पे लहरा रहा है और जो 21वीं सदी चल रही है, लेकिन इस टाइम पे भी जो हमारी महिलाएं हैं, हमारी माएं हैं, बहनें, बेटियां, उनको अपने राइट्स के बारे में, अपने हकों के बारे में कुछ भी नहीं पता। अपना रिप्रोडक्टिव हेल्थ, उनके क्या वो अपने जो जब प्रेगनेंसी होती है वो प्रेगनेंसी रखना या ना रखना उनकी मर्जी पे डिपेंडेंट है। दे आर इन कंट्रोल ऑफ देमसेल्व्स। पर आजकल भी वो इतने हश्ड अप रहते हैं, इतने सीक्रेसी में रहते हैं। दे डिपेंड ऑन देयर मदर इन लॉ और एक जो दाई होती है, एंड इससे जो उनका आगे फ्यूचर होता है, ऑब्स्टेटिक हिस्ट्री होती है, वो खराब हो जाती है। और आज हमारे पास इस माध्यम से बहुत ही अच्छे एक्सपर्ट्स हैं हमारे पैनल पे जो ये जागरूकता पैदा करेंगे। एंड एज वी से ईच वन टीच वन, जब आप सब लोगों को पता चलेगा कि क्या होते हैं अबॉर्शंस, कहाँ करा सकते हैं,
क्या कॉम्प्लिकेशंस है, क्या राइट्स है हमारे, तो आप आगे जाकर ये सोसाइटी में आगे इसको फैला सकते हैं, ये डिसमिनेट होगा और हमारी नॉलेज इसके बारे में बहुत ज्यादा बढ़ेगी। और जो हम ये पेशेंट्स, जो सिनेरियो अभी डॉक्टर निशी ने आपको दिखाया, जो बहुत ही फ्रीक्वेंटली हमें देखने को मिलता है, ऑलमोस्ट वी ब्रिंग देम बैक फ्रॉम डेथ, तो वो हमें कम करने का एक माध्यम आज हमने ढूंढा है, एंड आई होप इट इज यूजफुल टू ऑल ऑफ यू। सो विल स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। मैम विल बी आस्किंग द फर्स्ट क्वेश्चन। So first question, ma'am, Dr. Deepa, please, are you there? Yes, Dr. Nishi. So, I'm there. हाँ, so public, what is abortion और MTP? ये क्या चीज है? Abortion क्या है और MTP क्या है, और क्या ये सेफ है अगर कोई करवाना चाहे तो? देखिए, एबॉर्शन और एमटीपी की फुल फॉर्म होती है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ये मेडिकल टर्म है, साइंटिफिक टर्म कह सकते हैं। एबॉर्शन सेम चीज है दोनों, जिसको हिंदी में हम गर्भपात भी कहते हैं। ठीक है, तो गर्भपात या एमटीपी क्या है कि आपने अनचाही प्रेगनेंसी अगर किसी महिला को हो जाती है और वो उस बच्चे को, अगर वो गर्भपात मतलब उस बच्चे को वो खत्म करना चाहता है, या कह सकते हैं गिराना चाहता है, उसको एबॉर्शन कहा जाता है। और ये बहुत ही सेफ मेथड है। अगर आप इसको डॉक्टर से कंसल्ट करके, आप इसको डॉक्टर के पास जाते हैं और कंसल्ट करते हैं, तो आपका डॉक्टर बिल्कुल सही पर्सन है जो आपको बता सकता है कि ये प्रेगनेंसी, जैसे कि अभी आपने बताया ट्यूब की प्रेगनेंसी की बात आ जाती है, क्योंकि हर लेडी की, हर महिला की जो प्रेगनेंसी होती है वो हमेशा पहले ट्यूब में होती है, उसके बाद वो बच्चेदानी में शिफ्ट होती है। तो अगर हम पहले से डॉक्टर के पास चले जाते हैं टाइम से, तो डॉक्टर के पास तरीके हैं जानने के लिए कि ये ट्यूब की प्रेगनेंसी है या बच्चेदानी की प्रेगनेंसी है। और जो एबॉर्शन या एमटीपी होता है वो बच्चेदानी की प्रेगनेंसी का ही होता है। तो इसलिए ये बहुत सेफ मेथड है, आप इसके पास डॉक्टर के पास जाने के बाद आप इसको करा सकते हैं। संदेश। Yeah, my next question will be for Dr. Kiran. As मैम ने ऑलरेडी बताया कि जो अबॉर्शन होता है वो ये है कि हम वो प्रेगनेंसी रखना चाहते हैं या नहीं रखना चाहते हैं। तो मेरा नेक्स्ट सवाल डॉक्टर किरण से होगा कि जो ये प्रेगनेंसी या अबॉर्शन की बात कर रहे हैं, प्रेगनेंसी गिराने की बात, ये कितने हफ्ते तक हो सकती है, किस जेस्टेशनल एज तक हम ये करा सकते हैं, और कहाँ करा सकते हैं, कौन से सेंटर्स हैं जहाँ जाना हमारा अबॉर्शन के लिए आगे अच्छा रहेगा? थैंक यू संदेश जी एंड निशी जी फॉर इनवाइटिंग मी। और जहाँ तक अबॉर्शंस का सवाल है कि अबॉर्शन अगर किसी लेडी को पता है कि वो प्रेग्नेंट हो गई है, और एज अर्ली एज पॉसिबल उन्हें करवाना चाहिए अगर वो चाहते हैं कि उनको प्रेगनेंसी नहीं रखनी, क्योंकि जितनी देर जेस्टेशन बढ़ता जाएगा उतनी प्रेगनेंसी या अबॉर्शन में ज्यादा परेशानियां शुरू हो जाएंगी। तो हमारी गवर्नमेंट के हिसाब से 24 वीक्स तक अबॉर्शन अलाउड है, परंतु 24 वीक्स तक इतनी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं कि वो पेशेंट के लिए ठीक नहीं होता। अगर पेशेंट को फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, मतलब पहले 12 हफ्ते में अगर वो अबॉर्शन करा लेती है तो कंपैरेटिवली वो सेफ रहती है। तो मेडिकल अबॉर्शन मेथड है वो हम 9 वीक्स तक कर सकते हैं। उसके बाद 9 to 12 वीक्स तक हम सर्जिकल अबॉर्शन करते हैं। 12 वीक्स ऑनवर्ड हम मेडिकल मेथड एडेड विद सर्जिकल अबॉर्शन करते हैं। और इसमें भी ये होता है कि कहाँ किया जा सकता है, जो सेंटर्स गवर्नमेंट के द्वारा रजिस्टर्ड होते हैं, रजिस्टर्ड सेंटर्स फॉर एमटीपी, वही करवाना चाहिए। जितने भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं, पीएससी, सीएससी, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या मेडिकल कॉलेज, दे आर ऑटोमेटिकली रजिस्टर्ड। पर जो प्राइवेट प्रैक्टिशनर है उनको एक एप्लीकेशन लगानी पड़ती है। तो अगर वो वहां से उनके पास सर्टिफिकेट है तो ही वो अपने आप अबॉर्शन के लिए पिल्स दे सकते हैं या सर्जिकल अबॉर्शन कर सकते हैं। बिल्कुल मैम ने बहुत सही तरीके से ये समझाया है कि जब भी आपके पीरियड मिस होते हैं, जैसे ही पीरियड मिस होते हैं, चाहे आपके इरेगुलर पीरियड्स हैं या रेगुलर है, तो आप एक यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट घर पे कर सकते हैं। उससे आपको पता चलेगा आप प्रेग्नेंट हैं या प्रेग्नेंट नहीं है। अगर आपको पता चलता है आप प्रेग्नेंट हैं और आप नहीं रखना चाहते बच्चा, तो आप अबॉर्शन के लिए किसी भी रजिस्टर्ड सेंटर में जा सकते हैं। और ये अबॉर्शन जितनी जल्दी आप करवाएं उतना ही आपके लिए अच्छा है, बिकॉज टाइम के साथ कॉम्प्लिकेशंस का रेट जो है वो बढ़ता रहता है। और मैम ने जैसे आपको बताया, अभी तक हमारे पास हमारा कानून हमें 24 हफ्ते तक अबॉर्शन कराने की अनुमति दे देता है,
लेकिन जितना देर होगा उतने कॉम्प्लिकेशंस बढ़ेंगी। सो यूपीटी कीजिए और फोन नहीं, हेलो, या सो यूपीटी कीजिए, देखिए आप प्रेग्नेंट है कि नहीं, और आप अपना डिसीजन लीजिए, रजिस्टर्ड सेंटर में जाइए और आप अबॉर्शन कराइए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन मैम विल बी आस्किंग। हाँ डॉक्टर दीपा, इज इट लीगलाइज टू गेट इट डन? मतलब इसको करवाने में कोई लीगल कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं है जो पेशेंट एमटीपी करवाने जाता है या जो अबॉर्शन कराने जाता है? तो और इसकी कॉस्ट अगर हम जाएं गवर्नमेंट सेटअप में तो क्या है? देखिए ऐसा है कि ये मैं सब महिलाओं को ये बताना चाहती हूँ कि हमारे देश में एमटीपी जो है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, अबॉर्शन लीगलाइज्ड है। एक 1971 में ही एमटीपी लॉ आ गया था और जिसके अमेंडमेंट्स की अब 2021 में हो चुकी हैं। तो ये टोटली लीगलाइज्ड है, बिल्कुल कोई लीगल हैसल्स इसके अंदर नहीं आते हैं, एक्सेप्ट फ्यू कंडीशंस, कि अगर आपके पास कोई लड़की आ रही है जो कि 18 साल से कम है तो वो एक पॉक्सो एक्ट के अंदर आ जाता है। अदरवाइज एमटीपी एक अडल्ट फीमेल आती है, चाहे वो मैरिड हो चाहे वो अनमैरिड हो, तो भी हम इस प्रोसेस को, मतलब ये प्रोसेस बिल्कुल लीगलाइज्ड है। और रही बात कॉस्ट की, तो कॉस्ट अगर गवर्नमेंट सेटअप में देखा जाए तो ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। और मतलब किसी तरह का, मतलब इतना ज्यादा अप्रोचेबल है ये लॉ, इतना ज्यादा फीमेल फ्रेंडली है कि कोई भी लेडी किसी भी सेटअप में, इवन प्राइवेट सेटअप में भी अगर वो जाती है तो वो बिल्कुल, जैसे कि आपने पहले भी बताया कि उसको खुल के बाहर आना है, खुल के सामने आना है इस चीज के लिए, ना कोई इसमें डर की बात है, ना कोई लीगल एसेस है। और सबसे जो प्लस पॉइंट है कि अगर जब वो अबॉर्शन के लिए आती भी है तो जो उसका जो कंसेंट देना होता है उसमें भी उसको उसके रिलेटिव्स की जरूरत नहीं होती है, हस्बैंड की जरूरत नहीं होती है, वो अकेले आके भी ये अबॉर्शन करा सकती है। तो ये बहुत लीगलाइज्ड है और बिल्कुल सेफ है, और सबसे बड़ी बात है सब गवर्नमेंट सेटअप में फ्री ऑफ कॉस्ट भी है। तो ये बिल्कुल सही बात है कि मतलब इफ अ लेडी बिकम्स प्रेग्नेंट तो उसको देरी नहीं करनी चाहिए और किसी चीज से घबराना नहीं चाहिए, बिकॉज दिस इज इजीली अवेलेबल फैसिलिटी इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी बहुत नॉमिनल चार्जेस में ये प्रोसीजर हो जाता है। सिर्फ वन शुड सी के वो जो सेंटर है वो दैट शुड बी रजिस्टर्ड फॉर एमटीपी। तो ये चीज देख के अगर वहां जाते हैं, रादर देन गोइंग टू अनट्रेन्ड नर्सेज, इट इज बेटर के वहां पे ट्रेन्ड डॉक्टर के पास पहुंचा जाए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू, इट वाज बिफोर दिस, या हाँ, तो मेरा दूसरा नेक्स्ट सवाल जो है डॉक्टर किरण के लिए होगा। और मैम आप बहुत सरल शब्दों में क्या समझा सकते हैं कि अबॉर्शन करने के क्या क्या तरीके होते हैं, क्या मेथड्स होते हैं, और क्या इससे कोई घबराने वाली बात है? और जो हमारा मेडिकल टर्मिनेशन है, जो मेडिकल तरीके से हम करते हैं, वो कौन से जेस्टेशनल एज, किस हफ्ते ऑफ प्रेगनेंसी तक वो करा सकते हैं? थैंक यू। जो मेथड्स ऑफ अबॉर्शन है वो मेडिकल मेथड हो सकता है या सर्जिकल मेथड हो सकता है। मेडिकल मेथड में हमारे पास एक सेट ऑफ टेबलेट्स होता है, मिफेप्रिस्टोन एंड मीसोप्रिस्टोन टेबलेट्स होता है। उसको हम फर्स्ट डे हम मिफेप्रिस्टोन देते हैं, सेकेंड डे वी डोंट गिव एनी मेडिसिन, देन थर्ड डे हम मीसोप्रॉस की टेबलेट्स देते हैं। तो ये मेडिकल मेथड होता है। जो सर्जिकल मेथड है उसमें हम पेशेंट को पहले असेस करते हैं, फिर उनको कुछ ओटी में जाकर एनेस्थीसिया देकर कुछ मशीन से या इंस्ट्रूमेंट से हम सर्जिकली इवैक्यूएट करते हैं, वो सर्जिकल अबॉर्शन होता है। उसके लिए हमें एनेस्थीसिया की जरूरत पड़ती है। जो मेडिकल अबॉर्शन है वो हम लीगली हमें 9 वीक्स तक अलाउड है। पहले ये हमें सिर्फ 7 वीक्स तक अलाउड था, पर अब हमें ये 9 वीक्स तक अलाउड है। पर मेडिकल मेथड्स में आफ्टर द gestation of 12 weeks also medical methods pills they are used, but the quantity of that medicine is according to the gestation is, तो क्योंकि अगर ज्यादा दवाई देंगे तो यूट्रस के फटने का डर होता है, तो उसमें भी डोज थोड़ी सी कम करनी पड़ती है और पेशेंट को इन हॉस्पिटल में हमें एडमिट करना पड़ता है। दैट इज नॉट ए आउटसाइड ओपीडी प्रोसीजर। और पेशेंट जब भी हमारे पास आता है तो उसकी प्रॉपर हिस्ट्री लेकर उसका कोई अल्ट्रासाउंड इन्वेस्टिगेशन करने के बाद में हम उसको असेस करते हैं। तो उसके बाद में अगर वो इंडिकेशन प्रॉपर है और उसमें पेशेंट इज नॉट मच एनीमिक, तो हम उसको हम मेडिकल मेथड ऑफ अबॉर्शन दे सकते हैं फर्स्ट डे, देन थर्ड डे, एंड वी कॉल फॉर फॉलो अप ऑन द 15th डे फॉर सीइंग वेदर द अबॉर्शन इज कंप्लीट और
जी मैम, बहुत ही सरल शब्दों में मैम ने हमें बताया कि जब भी हमारा प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आता है और हमने एक डिसीजन ले लिया है कि हमने ये प्रेगनेंसी कंटिन्यू नहीं करनी है, अबॉर्शन कराना है, तो 9 हफ्तों तक तो वो टैबलेट से ही हो सकता है। पर आपको डॉक्टर के पास जाना है, एक जांच करानी है, वो आपको बताएंगे दवाई लेने का तरीका क्या है, और 9 हफ्तों तक वो प्रेगनेंसी आप दवाइयों टैबलेट्स के माध्यम से ही अपना अबॉर्शन या गर्भपात करा सकते हैं। उसके बाद हो सकता है कि सफाई की जरूरत पड़े, जैसे मैम ने बोला एडमिट होके कराना पड़ेगा, पर छोटा प्रोसीजर है और हम ये अस्पताल में बड़ी आसानी से करा सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन डॉक्टर ऋषि वुड बी आस्किंग। तो डॉक्टर दीपा, कई बार हमारे पास पेशेंट आता है कि उसको अबॉर्शन करानी है लेकिन उसके हस्बैंड अलाउ नहीं कर रहे, राइट, या उसकी सास नहीं मान रही है ना, तो व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ कंसेंट बिफोर प्रोसीजर, राइट? और अगर हमारे पास अनमैरिड गर्ल आती है, जैसे कि आजकल हम देख रहे हैं हमारी ओपीडी में वी आर गेटिंग गर्ल्स फॉर दिस प्रोसीजर, सो उनके लिए कंसेंट की क्या अहमियत है? पहले तो इस चीज के बारे में हमें थोड़ा बताइए। देखिए, सबसे जो जरूरी है कि किसी भी प्रोसीजर से, साइंटिफिक प्रोसीजर या कोई भी मेडिकल प्रोसीजर है, कंसेंट बहुत जरूरी है। कि एक फॉर्म सी आता है एमटीपी के लिए, उसमें कंसेंट हमें लेडी का लेना होता है। लेकिन एक बहुत अच्छी जो बात नई ऐड हुई है वो ये है कि किसी भी तरह से इस कंसेंट फॉर्म पे किसी भी रिलेटिव हस्बैंड के साइन की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। अगर वो लेडी खुद एडल्ट है, 18 साल से ऊपर है, तो वो खुद इस फैसले को ले सकती है और अपना कंसेंट साइन करके अपना अबॉर्शन वो करवा सकती है। ये उसको इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से ये पूरा लीगलाइज्ड उसको है। ये सब उनकी सुविधा के लिए ही किया गया है। और आप कह सकते हैं कि वुमेन शक्ति या मातृशक्ति या फीमेल्स को उठाने के लिए ये बहुत बहुत ही बढ़िया कदम है। और रही बात अनमैरिड गर्ल की, अनमैरिड गर्ल में दो तरह की चीज होती है कि वो है 18 साल से कम, जैसे एडोलेसेंट गर्ल्स की आपने बात की है इसके अंदर, तो एडोलेसेंट गर्ल्स मतलब वो 18 साल से कम है। तो 18 साल के कम अगर कोई भी लड़की आती है तो उसका अबॉर्शन नहीं हो सकता है अनलेस एंड अनटिल वो किसी ने उसको सेक्सुअली हैरेस किया गया है। अगर उसने कंसेंट से भी किया, 17 साल की है या 18 की पूरी भी नहीं हुई है, तब भी आपको हर कंडीशन में पुलिस को इन्फॉर्म करना जरूरी है। वो ऑल टुगेदर एक अलग एक्ट है, उसके बारे में हम बात नहीं करना चाहते यहाँ पे। लेकिन अनमैरिड गर्ल जो 18 साल से ऊपर है वो भी सिर्फ अपना कंसेंट, अपना सिर्फ साइन करके भी अबॉर्शन करवा सकती है। और मेडिकल अबॉर्शन, जैसे डॉक्टर किरण ने बताया, बहुत ही बढ़िया और बहुत ही सुविधाजनक प्रोसीजर है। और दूसरी चीज बात आती है कॉम्प्लिकेशंस की। देखिए, कॉम्प्लिकेशन किसी भी प्रोसीजर के साथ हो सकती हैं, लेकिन अगर आप डॉक्टर के पास आए हैं, पूरी डॉक्टर ने आपकी सारी कंडीशंस को समझा है और आप डॉक्टर की सुपरविजन में वो प्रोसेस करवा रहे हैं, तो कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस बिल्कुल नहीं होते हैं। फिर वही बात आ जाती है कि अगर आपका वो जो जहाँ पे आप प्रोसीजर करवा रहे हैं वो सेंटर अगर ऑथराइज्ड है, वो सेंटर रजिस्टर्ड है, तो वो सारे क्राइटेरियाज जो होते हैं उसको फुलफिल कर रहा होता है, तो कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती हैं। और अगर छोटी मोटी कोई कॉम्प्लिकेशन हो भी जाती है तो उसको डॉक्टर बहुत ही अच्छे तरीके से उसको संभाल सकता है। तो ये बहुत ही सिंपल और सेफ प्रोसीजर्स है जिसमें बिल्कुल भी लड़की को कभी घबराना नहीं होता है। सो टू सम अप ये है कि कंसेंट सिर्फ औरत का, सिर्फ वो अपने कंसेंट पे ये प्रोसीजर करवा सकती है। और जब वो डॉक्टर के पास जाएगी तो इट इज अवर ड्यूटी कि हम उनके पहले टेस्ट देखते हैं, पहले हम प्रेगनेंसी देखते हैं कहाँ पे है, फिर हम उनको कोई टेबलेट्स देते हैं या कोई प्रोसीजर एडवाइस। तो जब हम ठीक सेंटर में पहुंचते हैं, सो अपील फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म इज कि ओवर द काउंटर ड्रग्स लेने की बजाय वो अगर सही सेंटर में पहुंच रहे हैं तो यूजुअली कॉम्प्लिकेशन रेट नील के बराबर होता है। हमने आज तक कोई दवा से अबॉर्शन की हुई केसेस में कॉम्प्लिकेशंस नहीं देखी हैं। हाँ, उन केसेस में जो सीधी गोली लेकर हमारे पास आ जाते हैं, वी हैव सीन लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस। सो अगर हम सलाह करके कर रहे हैं तो यूजुअली ये प्रॉब्लम आने के चांसेस बहुत कम। सो डॉक्टर दीपा, ओवर टू यू। क्या हम अगर पेशेंट हमारे पास मेडिकल अबॉर्शन के लिए या किसी के लिए आता है तो हम बहुत ज्यादा टेस्ट ना कराते हुए थोड़े बहुत टेस्ट करवाना चाहते हैं, ठीक है? और क्या जब हम दवा से अबॉर्शन करते हैं मेडिकल अबॉर्शन तो 100% होती है या कुछ केसेस में प्रॉब्लम आ सकती है?
ये हमें बिकॉज ये छोटा प्रोसीजर है तो बहुत ही मिनिमल इन्वेस्टिगेशन चाहिए होती हैं, जैसे कि बेसिक एक हो गया कि सबसे पहले आपको ये देखना है प्रेगनेंसी है कि नहीं है, और प्रेगनेंसी टेस्ट जिसे कहते हैं यूपीटी बोलते हैं, यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट। और अगर किसी केस में आपको डाउट है तो ज्यादा से ज्यादा आप एक अल्ट्रासाउंड करके देख सकते हैं कि ये प्रेगनेंसी यूट्रस में है या ये कहीं ट्यूब में तो नहीं, अगर आपको कुछ डाउट है। और ब्लड इन्वेस्टिगेशंस में हीमोग्लोबिन आपको देखना होता है, यस ब्लड ग्रुप आपको हमेशा पता होना चाहिए किसी भी पेशेंट का जिसका आप एबॉर्शन कर रहे हैं, और एक यूरिन रूटीन आप टेस्ट करा सकते हैं। तो बहुत मिनिमल इन्वेस्टिगेशंस करनी होती है हमें प्री प्रोसीजर। दूसरी चीज ये बड़ा मिथ है कि अगर आपने दवाई ले ही ली है तो आपको 100% कंप्लीट हो ही जाएगा। देखिए मेडिकल साइंस में कोई भी चीज 100% नहीं होती है, देखा जाए तो लाइफ में भी कोई चीज भी 100% नहीं होती है। तो यस बहुत ज्यादा चांसेस हैं, अगर हमने प्री रिक्वायरमेंट से पहले के क्राइटेरिया जो है जो एक अबॉर्शन के लिए चाहिए होते हैं, इन्वेस्टिगेशंस करी हैं, वो सब देख के अगर आप प्रोसीजर कर रहे हैं तो यस सक्सेस रेट इज वेरी वेरी गुड, बट 100% नहीं होता है। और कंसेंट फॉर्म जो हम साइन कराते हैं उसमें ये सारी चीजें लिखी हुई होती है कि इसका कितना % चांस है सक्सेस का, क्या मेडिसिन दी जाएंगी, क्या इन्वेस्टिगेशंस की जरूरत होती है, और इमरजेंसी में या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं उसके बारे में आपको कब डॉक्टर से मिलना है और कैसे कैसे करना है। तो ये शुरुआत में ही लड़की को या लेडी को पता होना जरूरी है कि दीज मेडिसिन आर नॉट 100% इफेक्टिव, बट they are very very good and they are almost equal to 100% but not 100% at all. थैंक यू। तो इसमें क्या है कि अगर हीमोग्लोबिन पेशेंट का कम होगा, क्योंकि जब हम मेडिकली अबॉर्ट करते हैं तो उन केसेस में थोड़ी ब्लीडिंग नॉर्मल से ज्यादा होती है, तो इसलिए वी गेट द एचबी डन ताकि हमें पता लग जाए कि पेशेंट में खून की मात्रा कितनी है। अगर खून की मात्रा 8 से कम होती है तो यूजुअली हम ये टेबलेट्स को अवॉइड कर जाते हैं और फिर हम प्रोसीजर की तरफ चले जाते हैं। बट अगर उसका हीमोग्लोबिन 10 है 11 है तो वी गिव देम दिस टेबलेट्स, और उसके बाद वी हैव नेवर सीन एनी कॉम्प्लिकेशंस विद दीस टेबलेट्स। So next question, Sandesh, over to you. मेरा अगला सवाल डॉक्टर किरण के लिए है। ये सवाल हमें काफी फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है ओपीडी में। इट इज अ मिथ बेसिकली इन द पीपल्स माइंड कि जब एक फीमेल डिलीवर करती है, चाहे नॉर्मल डिलीवरी या सिजेरियन के बाद, तो उसके बाद उसके काफी टाइम तक पीरियड नहीं आते हैं, जिसको हम लैक्टेशनल एमेनोरिया बोलते हैं, जिसमें उसके पीरियड बंद हो जाते हैं बिकॉज वो अपने बच्चे को फीड करा रही होती है। उस टाइम पे अगर वो कॉन्ट्रासेप्शन यूज ना करे, परहेज ना रखे, तो वो दोबारा प्रेग्नेंट हो सकती है, क्योंकि ओव्यूलेशन हो सकती है, 2 पीरियड्स नहीं आ रहे हैं बट प्रेगनेंसी के चांस होते हैं। उस केसेस में मैम क्या हम मेडिकल अबॉर्शन करवा सकते हैं? जो एक मिथ है लोगों के माइंड में वो ये है कि अगर हम गोलियां लेंगे अबॉर्शन के लिए तो वो जो फीडिंग बच्चे को दे रहे हैं वो बच्चा अफेक्ट होगा। तो इसके बारे में आप थोड़ी सी जानकारी दे दीजिए हमारे दर्शकों को। जी मैम, अगर लेडी ब्रेस्ट फीड कर रही है तो एक टेबलेट मिफेप्रिस्टोन जो है उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। मीजोप्रोस्ट टेबलेट है वो थोड़ा सा बच्चे के ब्रेस्ट फीडिंग में जा सकती है। तो हम अपने पेशेंट को ये एडवाइस करते हैं कि जब भी वो मीजोप्रोस्ट की टेबलेट ले 4 आवर्स तक वो अपने बेबी को ब्रेस्ट फीड नहीं करे, तो उससे उसका बच्चे के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आता, बच्चे को कोई लूज मोशन वगैरह नहीं लगती। अदरवाइज इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। पर ये इसको देखने से पहले हमें ये जरूर जज करना चाहिए कि लैक्टेशनल एमेनोरिया में पेशेंट आया है कि वो अल्टीमेटली है कितने मंथ्स का प्रेग्नेंट, वेदर शी 6 months, 6 weeks, 12 weeks। वो प्रेगनेंसी का जेस्टेशन हमें जरूर कंफर्म करना चाहिए बिफोर गिविंग ऑल दिस मेडिसिन, एंड ओनली फॉर व्हेन वी आर गिविंग मीजोप्रोस्ट withhold breastfeeding for only 4 hours. ये जैसे किरण मैम ने बताया ये बात बहुत ही, इट शुड बी क्लियरली आउट दैट लैक्टेशनल एमेनोरिया में भी मेडिकल टर्मिनेशन कर सकते हैं हम 9 हफ्ते तक। तो उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, बच्चे को कोई खास साइड इफेक्ट नहीं होगा। इनफैक्ट जो हम खाना नॉर्मली खाते हैं, जैसे हम गोभी खाते हैं तो बच्चे को भी गैस हो जाएगा। सो इट इज अ माइनर साइड इफेक्ट जो मीजोप्रोस्टोन का मैम ने बोला बच्चे पे हो सकता है, उसके अलावा कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो अर्ली अगर आपको पता चलता है कि प्रेगनेंसी है तो आप 9 हफ्ते तक मेडिकली उसको टर्मिनेट कर सकते हैं, कोई घबराने वाली बात नहीं है। द अदर क्वेश्चन अगेन गोज टू यू मैम। सर्जिकल अबॉर्शंस के बारे में बात करते हैं, हमने मेडिकल अबॉर्शन के बारे में बात कर ली कि उसमें हमारे पास मीफेप्रिस्टोन का ऑप्शन है, मीजोप्रोस्ट का ऑप्शन है, कैसे लेनी होती है, क्या कॉम्प्लिकेशंस है, कितना सेफ है, कब तक करा सकते हैं। आई होप ये सब सबको क्लियर है। अब हम सर्जिकल अबॉर्शंस के बारे में अगर बात करें तो ये कौन से जेस्टेशन तक हम करा सकते हैं, इसकी सेफ्टी के बारे में आप दर्शकों को क्या
क्या बताएंगे, ये कौन कर सकते हैं ये सर्जिकल अबॉर्शंस, और ये कहाँ करवा सकते हैं। दो ये क्वेश्चन ओवरलैपिंग है, बट स्टिल अगर हम इसको फ्रीक्वेंटली टैकल करेंगे तो दर्शकों के माइंड में अच्छे से पता चल जाएगा कौन से सेंटर्स, कौन से लोग और कब तक सर्जिकल अबॉर्शंस हो सकते हैं। सर्जिकल अबॉर्शन है 9 to 12 वीक्स पर हम सर्जिकल अबॉर्शन करते हैं, क्योंकि आफ्टर 12 वीक्स तो हमें मेडिकल और सर्जिकल दोनों ही मेथड हमें यूज करने पड़ते हैं, जो प्योरली सर्जिकल है। अदरवाइज हम अप टू 6 to 12 वीक्स तक करा सकते हैं, पर अप टू 9 वीक्स हम मेडिकल भी यूज करते हैं, पर 9 to 12 वीक्स ओनली सर्जिकल मेथड इज यूज्ड, और इट इज क्वाइट सेफ। अगर हम ये अपना जो क्लाइंट है या जो पेशेंट है वो चूज करे कि उसको कोई ज्यादा सीवियर एनीमिया नहीं, कोई मेडिकल डिजीज नहीं है, कोई एनेस्थीसिया से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, उसका जीसी वगैरह कैसा है, तो वेल प्रिपेयर्ड पेशेंट है तो उसमें ज्यादा परेशानी नहीं होगी। पेशेंट का आईवी लाइन हमें मेंटेन करना पड़ता है, और इसको हम उन सेंटर्स में कर सकते हैं जहाँ पर एनेस्थीसिया की प्रॉपर एनेस्थीसिया की फैसिलिटीज हो, पैरासर्वाइकल ब्लॉक दिया जा सके, या आईवी सिडेशन दी जा सके, प्रॉपर ओटी हो, प्रॉपर स्टेरिलाइजेशन हो, प्रॉपर इंस्ट्रूमेंटेशन हो, या फिर अगर कभी जरूरत पड़े तो हमें कभी लेप्रोटमी की या कभी किसी चीज की जरूरत पड़े तो हम वहां पर कर सके। और डॉक्टर्स जो है वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स होने चाहिए। तो इसमें डॉक्टर से कोई भी ग्रेजुएट है डॉक्टर, अगर उसका एक्सपीरियंस है 6 months हाउस जॉब है, या उसने कोई 12 months उसने किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ऑब्स एंड गायनी में उसने कोई प्रॉपर जॉब किया हो, या फिर उसका एमबीबीएस डीजीओ हो, एमडी हो, तो वो लोग इसको कर सकते हैं सर्जिकल अबॉर्शन को। जी, तो बहुत ही स्पष्ट शब्दों में डॉक्टर किरण ने हमें बताया है कि हम पूरे 24 हफ्ते तक अबॉर्शन करवा सकते हैं, 9 हफ्ते तक मेडिकल अबॉर्शन हो सकता है, उसके बाद हम पेशेंट को एसेस करके देखते हैं क्या सर्जिकल अबॉर्शन के लिए जाना चाहिए या मेडिकल और सर्जिकल दोनों ऑप्शंस लेने चाहिए। तो आपका काम सिर्फ एक गायनेकोलॉजिस्ट के पास आना है, क्वालिफाइड गायनेकोलॉजिस्ट जहां पर सेटअप है सारे कॉम्प्लिकेशंस डील करने के। सेप्सिस की मैम ने बात की जहां स्टरलाइजेशन प्रॉपर हो, क्योंकि सेप्टिक अबॉर्शंस बहुत ही जानलेवा होते हैं। अगर सेप्सिस में अगर एसेप्टिक प्रिकॉशंस ना मेंटेन हो तो वो आपकी जान को खतरा दे सकते हैं। नेक्स्ट सवाल मैम पूछेंगे, डॉक्टर निशी विल बी आस्किंग। So, any comments on sex determination and abortions? I think there is a big no for this. Yes, Right? yes, there's a big no for it. Sex determination एक तो बिल्कुल बैन है हमारे देश में, इलीगल है, और पीसीपीएनडीटी एक लॉ है जो कि इसको बिल्कुल ही गोज अगेंस्ट इट, और इसके लिए प्रावधान भी है कि जो डॉक्टर है वो भी सजा पाएगा और जो करवाने आया है वो भी सजा पाएगा। तो ये बहुत जरूरी है पब्लिक को पता होना कि अगर आप ये चाहते हैं कि सेक्स डिटर्मिनेशन हो और आप उसके बाद अबॉर्शन चाहते हैं तो आप भी जेल जा सकते हैं, आपको भी सजा हो सकती है। ये पब्लिक को पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो इसके लिए बिग नो है। डॉक्टर संदेश, क्वेश्चन। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन डॉक्टर किरण के लिए है। अब हम एक सिनेरियो देखते हैं जहां पर एक लेडी को किसी ने भी एक लेवल 2 अल्ट्रासाउंड जो है वो एडवाइस कर दिया, उसमें उसके बच्चे में मैलफॉर्मेशन है, मतलब उसके अंग नहीं बने, शायद उसका सर नहीं बना है या उसके पैर नहीं बने, मे बी उसके कुछ भी मैलफॉर्म्ड फीटस है, मैलफॉर्म्ड बच्चा है उसके यूट्रस में। ऐसी लेडी को कहाँ जाना चाहिए, और क्या अगर ये लेडी 24 हफ्ते के बाद आती है, मे बी उसने अल्ट्रासाउंड ही 24 हफ्ते पे किया और फिर वो आ गई, तो उसका क्या सिनेरियो है, और क्या 24 हफ्ते के बाद के कॉम्प्लिकेशंस ज्यादा हैं एज कंपेयर टू पहले, इसके बारे में आप क्या बताएंगे मैम? अगर तो ये बच्चा जो है अगर फीटस है, अगर 20 वीक्स से कम की जेस्टेशन का है, तो वो ऐसे सेंटर में जा सकते हैं, क्योंकि इस टाइम पे हमें ओपिनियन ऑफ ओनली 1 डॉक्टर रिक्वायर्ड होता है, और 20 to 24 वीक्स तक हमें ओपिनियन ऑफ 2 डॉक्टर्स रिक्वायर्ड होता है। सो अकॉर्डिंग टू दी इस सेंटर में कितने डॉक्टर्स हैं उसके और कितनों को मान्यता मिली हुई है, उसी सेंटर में जाना चाहिए। जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है या मेडिकल कॉलेज है उनमें अप टू 20 इवन अबव 24 मेडिकल कॉलेज में इवन अबव 24 वीक्स अबॉर्शन हो सकता है, पर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ओनली अप टू 24 वीक्स अबॉर्शन हो सकता है। अगर ये 24 वीक्स से अबव प्रेगनेंसी जाती है और ग्रॉस कंजेनिटल एनॉमली है,
तो हमें एक मेडिकल बोर्ड के थ्रू हमें अप्लाई करना पड़ता है एक स्पेशलाइज्ड फॉर्म पर। वो लोग 3 दिन में अपनी रिपोर्ट देते हैं कि वेदर शी कैन गेट द अबॉर्शन और नॉट। वो जो उनका रिप्लाई आएगा, देन दे सेंड इट बैक टू द डॉक्टर, रेफरिंग डॉक्टर, कि आप विद इन 5 days इसको अबॉर्शन को कर दीजिए या नो कहिएगा। और अगर उनको किसी इन्वेस्टिगेशन की जरूरत होती है तो वो इन्वेस्टिगेशन भी वो कह सकते हैं कि आप ये इन्वेस्टिगेशन कराइएगा to see that the safety of women is must and abortion, क्योंकि जितना टाइम ज्यादा बढ़ता जाएगा उतने ब्लीडिंग के ज्यादा चांसेस होंगे, ज्यादा इन्फेक्शन के चांसेस होंगे, प्रोलॉन्ग लेबर हो सकता है कई बार सर्जिकल स्लॉट में भी करनी पड़ सकती है। सो जितना अर्ली अबॉर्शन हो जाए, जितनी अर्ली डिटेक्शन ऑफ एनॉमलीज हो जाए, दैट इज बेटर फॉर पेशेंट एंड डॉक्टर बोथ। एब्सोल्युटली मैम, दैट वाज सेड वेरी करेक्टली कि अगर हमारा जो हम चाहते हैं अबॉर्शन कराना मैलफॉर्म्ड फीटस का 20 वीक्स तक 24 वीक्स तक हमें 2 डॉक्टर्स के उसमें ओपिनियन चाहिए, 2 डॉक्टर्स हामी भरने चाहिए, हाँ ये फिट है अबॉर्शन कराने के लिए तो अबॉर्शन होगा। 20 वीक्स तक ये जो फिटनेस है सिर्फ एक डॉक्टर का चाहिए है। और जैसे मैम ने आपको बताया 24 हफ्ते के बाद अगर पता लगता है मैलफॉर्म्ड है या कोई रीजन है जिसमें वो बच्चा नहीं रखना चाहती हैं, तो वो 2 डॉक्टर से भी काम नहीं चलने वाला। एक बोर्ड बनेगा जो एक ओपिनियन फॉर्मुलेट करेगा, एक पीडियाट्रिशियन का, एक गायनोकोलॉजिस्ट का, वो कंप्लीट ओपिनियन लेकर फिर देखा जाएगा। रिस्क बेनिफिट रेशो कहते हैं उसको, रिस्क बेनिफिट रेशो वे करके क्या अबॉर्शन के बाद माँ की हालत कैसी रहेगी, क्या बच्चा पैदा होने के बाद ठीक रहेगा, ये सारे दृष्टिकोण देख के फिर एक ओपिनियन बनता है कि अबॉर्शन करा सकते हैं कि नहीं। सो देयर आर चांसेस व्हेन यू कैन गेट अबॉर्शन इवन आफ्टर 24 वीक्स, बट इट विल बी एसोसिएटेड विद मोर कॉम्प्लिकेशंस और इसमें प्रोसीजर थोड़ा लंबा है। मैम यू विल आस्क द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इन दिस क्वेश्चन आई वुड लाइक टू ऐड, जो कि हम दर्शकों को मैसेज देना चाहते हैं कि हर लेडी को 18 से 20 हफ्ते के बीच में एक अल्ट्रासाउंड जरूर कराना चाहिए, ताकि उन्हें पता लग जाए जो गर्भ में बच्चा बन रहा है उसके अंग ठीक है, उसकी बॉडी स्ट्रक्चर ठीक है, ताकि अगर हमें अबॉर्शन का प्रोसीजर उठाना पड़ता है तो इट इज डन एज अर्ली एज पॉसिबल। तो हमारे पास 24 वीक्स के बाद कब आते हैं पेशेंट? जब उन्होंने पहले अल्ट्रासाउंड करवाया ही नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल। इट शुड बी डन बिटवीन 18 हफ्ते से 20 हफ्ते के बीच में एक लेवल 2 स्कैन हर पेशेंट का होना चाहिए, सो दैट के कॉम्प्लिकेशन रेट इज लेस, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। So now how much time recovery, like पेशेंट्स को एप्रीहेंशन होती है कि डॉक्टर साहब अबॉर्शन करवा रहे हैं, हमें तो छुट्टी लेनी पड़ेगी, राइट? तो रिकवरी को कितना समय लगता है ऐसे पेशेंट्स का? देखिए रिकवरी में बहुत ज्यादा टाइम कभी भी अबॉर्शन में नहीं लगता है, लेकिन इसका भी एक हमें ये बहुत जरूरी होता है कि किस स्टेज पे अबॉर्शन कराया गया है। अगर आपने बहुत अर्ली प्रेगनेंसी में अबॉर्शन कराया है या आपका बेसलाइन हीमोग्लोबिन अच्छा है और कोई किसी तो आपको कोई कॉम्प्लिकेशन होने का चांस नहीं होगा, तो आपकी जो रिकवरी है वो विद इन 24 to 48 आवर्स बहुत बेटर हो जाती है। और दूसरी चीज, एक लेडी को हमें काउंसिल करना बहुत जरूरी होता है कि देखिए ये जो ब्लीडिंग आपके अबॉर्शन हुआ है इसके बाद ब्लीडिंग आपकी रह सकती है, लगभग हफ्ता भी रह सकती है, कई बार 4 हफ्ते तक भी रहती है, थोड़ी थोड़ी बीच में कभी स्पॉटिंग हो गई या कभी क्लॉट्स भी निकल गए तो भी वो नॉर्मल चीजें हैं। तो अगर लेडी का ठीक से काउंसिल किया जाए या उसका बेसलाइन हीमोग्लोबिन अच्छा है या उसने बहुत अर्ली प्रेगनेंसी में अबॉर्शन करा लिया है तो रिकवरी बहुत ही बढ़िया होती है। और उसको किसी भी तरह की ये सोचना कि मैं बहुत वीकनेस आ जाएगी या कुछ है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। तो टाइमली इंटरवेंशन विद लेस मतलब आपका बेसलाइन अच्छा होना चाहिए हीमोग्लोबिन, तभी तो आप डॉक्टर के पास आए हैं, तो ये सारी चीजें डॉक्टर देख के साथ करेगा तो आपकी रिकवरी भी उतनी अच्छी हो। So it can be done, और उसके बाद पेशेंट कैन रिज्यूम, लाइक इफ शी इज अ वर्किंग लेडी तो विद इन अ वीक वो अपनी ड्यूटी को रिज्यूम कर सकती है if she wants to avail abortion leave or then she can, then that is a different right? So संदेश, नेक्स्ट क्वेश्चन। डॉक्टर किरण मैम, आपके लिए क्वेश्चन है एक जनरल ओवरव्यू कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में। कौन से ऐसे तरीके हैं जिससे बच्चों में हम स्पेस रख सकते हैं ताकि जो मदर है उसकी हेल्थ भी ठीक रहे? इवन जब हम अबॉर्शन करके पेशेंट को घर भेजते हैं, यू नो, women in our society don't have as much say
तो यू नेवर नो, वो थोड़े महीने बाद फिर प्रेग्नेंट होकर आए। तो ऐसे क्या ऑप्शंस अवेलेबल है हमारे पास जिससे हम प्रॉपर स्पेसिंग कर सकते हैं और कॉन्ट्रासेप्शन एडवाइस कर सकते हैं ऐसी औरतों को, न्यूली वेड कपल्स को, इवन अनमैरिड लड़कियों को आजकल के टाइम पे? कॉन्ट्रासेप्शन हमारे लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, और जो यंग बच्चे हैं उनके लिए हम हमेशा कहेंगे डुअल प्रोटेक्शन का, हम कहेंगे 2 प्रोटेक्शन यूज करनी चाहिए, सो दैट दे डोंट गेट प्रेग्नेंट। तो उनको या फिर और उनको प्रेगनेंसी नहीं हो, और दूसरा साथ में उनको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस ना हो। और जो लोग मल्टीपल पार्टनर यूज करते हैं उनको भी हमें ये कहना चाहिए कि दे शुड यूज द कंडोम्स एंड द अदर मेथड्स ऑफ द अबॉर्शन आल्सो। और या जिनको इन्फेक्शन है उनको भी कंडोम्स का जरूर यूज करते हैं। इसके साथ साथ में अगर वो कुछ और प्रोडक्ट भी यूज करते हैं दैट इज वेरी गुड। बाकी कंडोम्स है, फीमेल कंडोम कह सकते हैं, मेल कंडोम है, कॉपर टी है, कॉपर टी मल्टीलोड, या LNG IUCD है, इंजेक्शन है, इम्प्लानोन का इंजेक्शन आता है जो सबक्यूटेनियसली आर्म पे लग जाता है। और बाकी जो नेचुरल मेथड्स दे कैन अडॉप्ट, दीज आर द मेथड्स दे कैन यूज। तो यूजली जो हमारे पास पेशेंट्स आते हैं जो कॉपर टी लगवाना पसंद करते हैं, या फिर पिल्स लेना पसंद करते हैं, या एवरी 3 मंथली इंजेक्शन लगवाना पसंद करते हैं, या फिर एक इंजेक्शन इम्प्लानोन एवरी 5 years तक या एवरी 3 years के लिए सबक्यूटेनियस लग जाता है। दीज आर द कॉमन वंस। और पहले ये था कि जो अनमैरिड गर्ल्स पे कॉपर टी नहीं लगाया करते थे, अब एक कॉपर टी ऐसी आ रही है जो पतली वाली आ रही है, वो अगर पेशेंट जो है कुछ और मेथड नहीं यूज करता तो अनमैरिड गर्ल्स को हम वो पतले वाली कॉपर टी भी लगा सकते हैं, परंतु उसके साथ हमें कंडोम के लिए उसको कहना ही कहना है। बिल्कुल मैम, आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि हमारे पास एक प्लेटर है कॉन्ट्रासेप्टिव्स का, तो जिसमें हमारे पास पिल्स हैं, कंबाइंड पिल्स हैं, जिसमें हमारे पास ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन होता है, हमारे पास प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल्स है जो हम लैक्टेशन में दे सकते हैं, हमारे पास इंजेक्शंस है जो हर 3 महीने बाद लग सकते हैं, IUCDs के बारे में मैम ने बात की जो 5 साल या 10 साल लगे रह सकते हैं। तो हमारे पास कॉन्ट्रासेप्शन की कमी बिल्कुल नहीं है, तो इनका उपयोग करना बहुत अच्छा है, स्पेसिंग अच्छी रहेगी, मदर की हेल्थ अच्छी रहेगी, और फाइनेंशियल बर्डन भी नहीं बढ़ेगा। ऐसा नहीं है कि बच्चा है अब रख लो, अब अबॉर्शन कराने की क्या जरूरत है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो कमिंग टाइम में हमें ज्यादा जागरूक होना है अनमैरिड गर्ल्स के लिए। ऑब्वियसली हम उनको स्कूल नहीं कर सकते, पर हम उनको हेल्दी ऑप्शंस के बारे में जरूर बता सकते हैं ताकि वो प्रेगनेंसीज के साथ और STDs के साथ हमारे पास ना आए। जो हमारे न्यूअर कॉन्ट्रासेप्टिव्स है, बहुत ही लो डोज कॉन्ट्रासेप्टिव्स है, मिनिमल साइड इफेक्ट्स होता है इनमें, तो उनको लेने में कोई हर्ज नहीं है, आप 2 साल तक भी उनको ले सकते हैं। सो ये बहुत ही अच्छी चीज है जो आप सबको पता होना चाहिए। मैम आप पूछेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन? Another thing I would like to add in this only, जैसे हमारे पास न्यूली मैरिड कपल आ जाते हैं विद इन ए मंथ ऑफ देयर मैरिज, राइट, तो वो आकर कहते हैं कि हमें तो प्रेगनेंसी हो गई तो अबॉर्शन करवाना है, वी डोंट वांट टू हैव दिस बेबी बिकॉज वी वांट, उनका कैरियर होता है या उन्होंने अब्रॉड जाना होता है। सो अपील इज के देयर इज अ बास्केट ऑफ दीज कॉन्ट्रासेप्टिव्स अवेलेबल, राइट। सो अगर वो जस्ट मैरिज के बाद जाके डॉक्टर के पास बैठ के दे विल डिस्कस विद द ऑप्शंस, we can give them the best options for that, right, so they can prolong or they can space their pregnancy as long as they want, and later on because any abortion अगर हम करते हैं तो उसकी कुछ ना कुछ complications आ सकती हैं बाद में, why to have it, right, so better is to avoid the pregnancy। so जी just वैसे IUCD is covered, but just कब रखवा सकते हैं इसको हम प्रॉपर्टी को, और किसके लिए ये ज्यादा सेफ रह जाती है, लाइक वंस अ पर्सन हैज कंप्लीटेड द फैमिली, है ना, या कौन से पीरियड के कौन से डे पे रखते हैं और इसके कोई साइड इफेक्ट्स हैं या नहीं, थोड़ा इसके बारे में बताइए। देखिए, IUCD जो होता है इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, ये बड़ा पुराना मेथड सदियों से यूज हुआ जा रहा है और बहुत ही सेफ और बहुत बढ़िया है, लेकिन इसके लिए भी एक्सपर्टाइज की जरूरत होती है, तो आपको डॉक्टर के पास आके ये लगाना है। ये एक्चुअल में किसी भी टाइम लगाया जा सकता है। अगर आपने कोई अनप्रोटेक्टेड सेक्स किया है, उसके भी अगर आप 5 दिन के अंदर अंदर डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं तो भी IUCD लगा सकते हैं, और वो बहुत ही कारगर होता है, बहुत प्रोटेक्टिव, उस टाइम भी प्रोटेक्शन देता है। नहीं तो ज्यादातर लेडी का जैसे ही उसका मेंसेस खत्म हो, वो बेस्ट टाइम होता है IUCD इंसर्ट करने का। प्रोसीजर सिर्फ 5 मिनट का है।
3 साल, 5 साल, 10 साल, कितनी भी ड्यूरेशन के लिए डिफरेंट तरह की IUCDs आती हैं, बहुत ही बढ़िया और बिल्कुल मिनिमल साइड इफेक्ट्स के साथ हैं ये लगवाई जा सकती हैं। और बात अगर बहुत सारे मिथ हैं कि ऊपर चढ़ जाती है, पेट में चली जाती है, और मेरी सहेली के तो चली गई थी या इसके हो गई थी, तो देखिए हर इंसान अलग होता है। और ऊपर चली जाने वाली जो चीज है, यूट्रस जो है वो एक ऑर्गन है बॉडी का, पेट का एक पार्ट है। तो हमने IUCD डाली यूट्रस के अंदर, तो वो पेट के यूट्रस को चीर के पेट के अंदर जाने वाली इतनी रेयर कॉम्प्लिकेशन है, इतनी रेयर कॉम्प्लिकेशन है कि जो डालते हुए होती है, अदरवाइज अपने आप कुछ नहीं होती है। तो ये रेयर कॉम्प्लिकेशन, जैसे कि डॉक्टर निशी भी इस बात पे एग्री करेंगी कि ये हमने अभी तक अपनी लाइफ में देखी नहीं है, तो इसलिए ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। और ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छी होती है कि या तो एक बच्चे और दूसरे बच्चे के बीच में आपको जो गैप करना है, या 3 साल का, 5 साल का, तो उसके लिए बहुत अच्छी होती है, या जो फैमिली पूरी कर सके होते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छी होती है। ज्यादातर हम जिनका अभी एक भी बच्चा नहीं हुआ, उनमें हम IUCD नॉर्मली अवॉइड करने के लिए बोलते हैं, ऑप्शन कुछ नहीं है, वो खुद चाहती है तो ये किया जा सकता है, बट ज्यादातर इसको गैपिंग में यूज करते हैं या फैमिली कंप्लीट होने के बाद की जाती है। और डॉक्टर निशी आप कुछ और बताएं, मैं इसमें कुछ और ऐड करना चाहती हूँ तो बताइए। कॉम्प्लिकेशंस कुछ नहीं होती है, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स भी कुछ खास नहीं होती हैं, और आपको आइडियली अगर कॉम्प्लिकेशन से बचना है तो हर 6 महीने से 1 साल के अंदर डॉक्टर से मिलते रहना चाहिए। डॉक्टर एग्जामिन करता है, और आप खुद भी जांच कर सकती हैं। डॉक्टर आपको बताता है कि वो एक थ्रेड छोड़ता है कि थ्रेड को कैसे फील करना है, तो समय समय पर आप भी वो हाथ डाल के, उंगली डाल के आप उस थ्रेड को चेक करके देख सकते हैं कि आपकी IUCD जगह पे है कि नहीं। Another thing which I would like to add is आजकल जो सिविल हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स या इवन डिलीवरी के साथ ही इसको रखा जाता है। yes, that's an important point, very important. वंडरफुल थिंग कि पेशेंट की डिलीवरी हो गई है, उसके बाद उसे 3 साल 5 साल बच्चा नहीं चाहिए, और जो हमें प्रॉपर्टी रखवाने की प्रोसीजर के लिए जाना पड़ता था, तो वो भी अब जरूरत नहीं है। yes. हाँ, तो वो पेशेंट से पहले ही कंसेंट ले लिया जाता है डिलीवरी से पहले। इफ दे से यस, देन इट इज अ वेरी गुड ऑप्शन, और हर एक को यस करना चाहिए इसके लिए, ताकि उनको दोबारा इस चीज की, प्रेगनेंसी की प्रॉब्लम ना आए और हम अबॉर्शन की तरफ ना जाए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन टू डॉक्टर किरण। जी मैम, Dr. Kiran, the last question which goes to you is regarding the permanent methods of birth control. A word about it. अब जैसे पेशेंट से उनकी फैमिली कंप्लीट हो गई है, 2 बच्चे हैं उनके या 3 बच्चे हैं, कईयों के 4 बच्चे हैं, ये परमानेंट मेथड्स के लिए किनको जाना चाहिए और ये क्या मेथड्स होते हैं? परमानेंट मेथड्स जो हैं फीमेल के लिए भी होते हैं और मेल के लिए भी होता है। फीमेल के लिए इसको हम स्टेरिलाइजेशन ऑपरेशन बोलते हैं। ये लेप्रोस्कोपी भी हो सकता है और हिस्टेरोस्कोपी के लिए भी हो सकता है और लेप्रोटमी के थ्रू भी हो सकता है। तीनों तरीकों से हो सकता है। और इसमें लेप्रोस्कोपी में तो पेशेंट को बिल्कुल भी विद इन ए डे और सो लेप्रोस्कोपी में पेशेंट अपने काम पे जा सकता है। जो ओपन टुबेक्टमी करते हैं उसमें पेशेंट को हफ्ता तक आराम करना पड़ता है। हिस्टेरोस्कोपी एक्लूजन ऑफ ट्यूब्स, उसमें पेशेंट भी अगले दिन तक काम करना जा सकता है। और जहाँ तक मेल्स के लिए वेसेक्टमी ऑपरेशन होता है, तो मेल्स भी विद इन ए वीक अपने काम पे जा सकते हैं एंड कोई उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और ये हम उन लोगों के लिए एडवाइस करते हैं जो लोग अपनी फैमिली कंप्लीट कर चुके हैं और उन्हें अपने आगे बच्चा नहीं चाहिए। अगर किसी का एक बच्चा है, यूजुअली हम उनको एडवाइस नहीं करते, और यूजुअली अगर किसी के 2 बच्चे भी है और बच्चे छोटे हैं तो हम उनको कहते हैं पहले आप प्रॉपर्टी वगैरह कुछ यूज करिएगा, लेट द बेबी बी 5 years अप्रोक्सीमेटली, उसके बाद में कराइए। क्योंकि एक बार ये ऑपरेशन हो गया तो इसको खोलने का प्रोसीजर बहुत कम्बरसम होता है और कि उसके सक्सेस रेट होते भी है, इट इज जस्ट अप्रोक्सीमेटली 30%। सो जिन लोगों की फैमिली कंप्लीट हो गई है और दे आर डेफिनेट कि उनको और बच्चे नहीं चाहिए, उन्हीं को ये करवाना चाहिए। जी बिल्कुल मैम। तो हमारे पास जो स्टरलाइजेशन के परमानेंट मेथड्स है उसमें मैम ने आपको बताया लैप्रोस्कोपी से कर सकते हैं, हिस्टेरोस्कोपिकली, या छोटा सा चीरा लगा के पेट पे भी हम ट्यूब्स को बांध सकते हैं, दोबारा प्रेगनेंसी नहीं होगी। और ये वो लोग कराएंगे जिनकी फैमिली कंप्लीट है।
So I think with this we are done with our questions, and if I sum up towards the end, I'd like to say that हमारे experts ने इतनी अच्छी और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी सब दर्शकों के साथ जो है वो शेयर की है, और जो आज हमारा पैनल था, डिस्कशन था, हमने बहुत ही नॉर्मल बेसिक क्वेश्चंस रखे थे जिसमें बहुत ही मेडिकल टर्म्स इन्वॉल्व नहीं थे, ताकि ये पूरा ग्रास रूट लेवल तक जाए ये बात कि नंबर 1 प्रेगनेंसी हो तो प्लीज गायनोकोलॉजिस्ट के पास एक रजिस्टर्ड सेंटर में आइए। बच्चा रखना है या नहीं रखना है आपके हाथ में है, आपकी इच्छा है, तो आप इसके बारे में सोच के वापस गायनोकोलॉजिस्ट के पास आए। हम सब लोग आपके लिए बैठे हैं, आपकी आपकी हेल्थ देखने के लिए बैठे हैं, आपकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ देखने के लिए बैठे हैं। तो कृपया आप कोएक्स के पास या दाइयों के पास या जो सेंटर्स रजिस्टर्ड है वहां जाकर अपनी जान खतरे में ना डालें। इस चीज की अवेयरनेस के लिए आज ये हुआ था, एंड वेरी ग्रेटफुल टू दीपा मैम एंड किरण मैम फॉर शेयरिंग देयर नॉलेज। बहुत ही अच्छा रहा आज का सेशन। आई वुड आस्क डॉक्टर निशी टू कंक्लूड इन अ फ्यू लाइंस। Yes, thank you all the experts, Dr. Deepa, Dr. Kiran and Dr. Sandesh, Dr. Rajni ji. So ये जो मैंने अभी पहले पैम्फलेट दिखाया था, ये हम सब MTP कमेटी